नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का दसवेल गुरु जी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ. So this particular session I'm going to address a question actually which is often raised by my students, that is what is the best branch currently regarding the market scenario and all, if I'm taking civil engineering for the, that is for masters, क्या एक्चुअली बेस्ट ब्रांच रहेगा? इज इट स्ट्रक्चर, सीटीएम, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंट, या फिर कुछ लाइक अदर ब्रांचेस? So to address this question, let me first be very clear. In this particular session, what I'm going to do is a comparative analysis of the branches. No branch is good or no branch is bad, something like that. But the questions that I face actually from most of the students, it's basically, I will say, divided into two clusters. फर्स्ट क्लस्टर इज स्ट्रक्चर वर्सेस सीटीएम क्लस्टर, ये एक पर्टिकुलर क्लस्टर है. और जो दूसरा क्लस्टर है दैट इज एनवायरमेंट वर्सेस जियोटेक वर्सेस ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन इज somewhat like a middle ground, I will say. And the third cluster, there is also a third cluster that is related to something outside of civil engineering, but who have done their graduation from civil engineering. So let me address the first question, that is structure versus CTM. If I address this particular question, the structure का देखो एक constant market share है definitely, and it has very good placements. But if you talk about the future growth, right? If you are in some companies like the big companies like L&T and all, initially there will be a lot of hard work, and mostly either it will be a site based job or a design based job in like office. So the growth is very stagnant, I will say. I mean, the growth is not very exponential, it's linear, and the market is very stagnant, it's not very much growing, I will say. On the other hand, CTM, through CTM you can get a very higher position, get into a higher position, like say a project manager, and you can be in that particular position within a shorter span of time, because it's construction planning and management, right? Whenever this management term comes, an entire range of new possibilities open up. So that is one of the points that you have to keep in mind. So but the problem with CTM is that CTM is normally available in very few institutes. Like if I talk about IITs like IIT Bombay, Delhi, Madras, that's all right. And in case of your this particular thing, NITs like Warangal, Suratkal, and Surat Nagpur, these are the main four institutes. That's why also its demand is higher, but you can understand that structure has more number of seats. If you compare the percentage of placements, it's almost the same. Like in most of the cases, the people from structure or seating, they are getting placed. Almost full placement is there. Okay. Now talking about environment versus geotech. Now, if you talk about the current scenario, the market of geotech is slightly down. Okay. Now, one thing also about structure I forgot to mention. I've told you that CTM branch is available very exclusively to some branches, some institutes. But if I talk about structure, even people with a GATE score of 350, general category I'm telling, or below that, they are getting structures branch in some of the NITs, especially in the northeastern part of India. So there, that is the main advantage, I will say, of this particular thing. And there also the placement is very good. There are some NITs in the northeast where only in, if I I'm talking about civil engineering, only in structural branch placement occur. There are some NITs definitely like that. So from that perspective, it's well and good. Now, if I talk about environment versus geotech, the scope of environment currently is quite high. As you can see also that current scenario, maybe the PSUs like NTPC, Coal India, IOCL, ONGC, DRDO, they're all recruiting environmental engineering graduates or who have done masters in environmental engineering through either through GATE ES paper like DVC or through the separate examination like NTPC this year. But by the way, एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे by the way, thank you for all your wishes, warm wishes for Guru Purnima. Stay blessed and loved all. And to celebrate that particular thing, there's a written gift from my side, that is Guru Purnima offer is going on in my app. और NTPC एनवायरमेंटल ऑफिसर की जो तैयारी करे उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक कोर्स मैंने वहाँ पर डाला हुआ. इट ओनली कॉस्ट 749 रुपीज़ इफ़ यू आर अप्लाइंग द कोड GURU25. बहुत ही बढ़िया कोर्स है. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेगा, लाइक द एग्जैक्ट पैटर्न दैट यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर. ज़रूर से ज्वाइन कर लेना. मेरे ऐप
का जो नाम है वही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, सो यू कैन एक्सेस। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और सारे कोर्सेज पे एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग का जो फुल कोर्स है वहाँ पे भी आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल्सो सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी। नाउ टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट का, आप देख ही रहे हो कि इसीलिए ऑल्सो यू कैन सी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एनवायरमेंट के थ्रू एक्सक्लूसिवली भी है। मान लो कोई सिविल के थ्रू नहीं कर पा रहे तो कम से कम एनवायरमेंट के थ्रू कर ले रहा है, पोस्ट तो सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। So that is also one of the benefits, and that's why people are having a quite higher attention towards environment. And this year, for the first time, we can see this thing that environment ka cut off most of the institutes में geotech से ज़्यादा है. So the reason is obvious. Geotech में if you are doing basically masters from geotech with a view for placement, तैयारी का पर्सपेक्टिव में geotech is and structure they are not good branches. तैयारी का टाइम बहुत कम मिलता है। CTM इज अ गुड ब्रांच फॉर प्रिपरेशन ओनली फॉर प्रिपेयरिंग फॉर EAC, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में ये हेल्प करता है, क्योंकि CTM का एक बल्क शेयर वहाँ पे आता है, बोथ इन योर पेपर 1 पेपर 2। नाउ इफ आई टॉक अबाउट तो जियोटेक का कोर ब्रांचेस, तो त्रिची से तो ठीक ठाक ही प्लेसमेंट मिल जाता है इफ यू आर डूइंग फ्रॉम NIT, सूरत कल से भी ठीक ठाक, बाकी वारंगल से भी मोटा मोटी अराउंड 50% 60% का मिल जाता है, बट रिमेनिंग नो आई मीन पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग बेसिकली। ओके, इफ़ यू आर फोकस अबाउट प्लेसमेंट, मतलब बहुत कम होता है प्लेसमेंट, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि प्लेसमेंट नहीं होता है, बट बहुत कम होता है। इफ आई टॉक अबाउट द IITs, ऑल्सो टॉप IITs में प्लेसमेंट होता है, इवन सम ऑफ द IITs लाइक IIT KGP एंड ऑल, वहाँ पे भी अराउंड 60% प्लेसमेंट हुआ है जियो टेक्निकल में। सो यू कैन अंडरस्टैंड द सिनेरियो। बट एनवायरमेंट डेफिनेटली प्लेसमेंट के साथ साथ आपको तैयारी करने का टाइम भी मिलता है, और आपको एक एक्स्ट्रा एज भी मिल जाता है अभी फॉर दिस PSUs रिक्रूटमेंट, बिकॉज दे आर रिक्रूटिंग the environmental engineering students directly, either who have done the graduation of in environmental engineering or who have done the masters in environmental engineering, who have done graduation in some other branches like civil। तो ये एक एडवांटेज है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द अलाइड ब्रांचेस, जो बाकी ब्रांचेस है, जो कुछ अलाइड ब्रांचेस है उसमें बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया NITs में कालीकट में ऑफशोर स्ट्रक्चर, मरीन स्ट्रक्चर इन सूरतकल। ओके, कुछ ब्रांचेस है जियो इन्फॉर्मेटिक्स टाइप ऑफ ब्रांचेस, और कुछ है प्योरली नॉन कोर ब्रांचेस। इसमें जो स्ट्रक्चर रिलेटेड अलाइड ब्रांचेस है उसमें प्लेसमेंट का परसेंटेज बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत एक्सक्लूसिव ब्रांचेस लाइक ऑफशोर स्ट्रक्चर इन कालीकट, सूरतकल मरीन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग NIT नागपुर को छोड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत अच्छा है। राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट द अदर अलाइड ब्रांचेस लाइक जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड ऑल, ये कुछ NITs में लाइक सूरतकल एंड वारंगल, इफ यू गेट स्टिल प्लेसमेंट इज देयर अराउंड 40-50%, बट इन द अदर NITs लाइक भोपाल वगैरह में भी है, आई गेस इलाहाबाद में भी, तो उसमें उतना अच्छा खासा कुछ प्लेसमेंट नहीं है। अगर आप फ्यूचर फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, आप देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन फ्यूचर लाइक इन PhDs एंड ऑल, वो सब अगर आप करना चाहते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, बट अदरवाइज प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव में उन सब इंस्टीट्यूट्स में उतना अच्छा खासा कुछ नहीं है। अगर आप IIT बॉम्बे में रिमोट सेंसिंग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, बट दैट इज़ अ स्टोरी एक्चुअली। नाउ द अनदर सेक्शन इफ आई टॉक अबाउट इज अ प्योर नॉन कोर जॉब। सब प्योर नॉन कोर जॉब में इफ़ यू आर ज्वाइनिंग सम ऑफ द वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स, तो यहाँ पे देखो मेन मैटर है इंस्टीट्यूट का, लाइक CDS आप पढ़ रहे हो या AI पढ़ रहे हो, NIT भोपाल में AI पढ़ रहे हो, CDS पढ़ रहे हो NIT सूरतकल में, देन इट्स गुड। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे जो सोच के लोग जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग कि हमको जो 20-30 लाख का पैकेज मिलेगा, जनरली डजंट हैपन, बिकॉज यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लोग भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग भी आते हैं। नाउ एज अ रिक्रूटर पीपल फील व्हाट कि अरे यार मैं कंप्यूटर साइंस वाला को ले लेता हूँ, जो हाई पैकेज वाले जॉब होते हैं मोस्टली, 2-3 एक्सेप्शन के सिवा वो जो बहुत हाई पैकेज वाले जॉब है उन्हीं को मिलता है। 8-9 लाख 10 लाख का जॉब सिविल वालों को मिलता है मैक्सिमम। दिस इज द हार्श रियलिटी। नाउ कुछ IITs में डेफिनेटली जहाँ पे ज़्यादा नॉन कोर कंपनीज आते हैं वहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाता है। सो दिस इज एक्चुअली ओवरऑल एनालिसिस। आपके मन में अगर और कोई भी सवाल होगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट मी नो, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम। ओके, इफ़ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज एंड ऑल। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और गुरु पूर्णिमा का जो ऑफर चल रहा है उसका फ़ायदा उठा के जो गेट 2025 या फिर NTPC या फिर कोई भी PSU एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की तैयारी करे, गुरु 25 इस कोड का इस्तेमाल करके एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग कोर्स का परचेज ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड शुभरात्रि। एंड डेफिनेटली जॉइन माई कोर्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कर देना वीडियो को, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम में भी यूजफुल अपडेट या रील के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।